ارم مشتاق ہے اور میں آج اپنے ورچوئل اسٹوڈیو دا ریفلیکشن روم میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میں ایک ایجوکیٹر ہوں، میں ایک پوڈ کاسٹر ہوں اور میں اپنے انٹرویو سیشن کمپلیٹ کرتی ہوں اور میں ریویوز دیتی ہوں۔ تو میرے انٹرویوز کا جو ورچوئل اسٹوڈیو ہے اس کا نام ستارہ ارم کے ساتھ ہے، اور جب میں ریویوز کریٹ کرتی ہوں تو اس کا میرا ورچوئل اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام ہے ورچوئل میرا جو اسٹوڈیو ہے اس کا نام ہے دا ریفلیکشن روم۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو آج جو ہے میں آئی ہوں ایک ٹیڈ ٹاک جو کہ جینیفر گولبیک نے دی ہے، اس کا ٹاپک ہے از اے آئی پروگریس ٹیک، اس کے اوپر اسٹک تو جو ہے اس کے اوپر میں اپنا ریویو بنا رہی ہوں اردو زبان میں۔ تو اس پر ریویو پر جانے سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے سے اچھی طرح انٹروڈیوس ہو جائیں اور میرے سوشل میڈیا ہینڈلز کو بھی دیکھ لیں، تاکہ اگر آپ کو میرا یہ کنٹینٹ ویلیویبل لگے اور آپ مجھ سے کنیکٹ ہونا چاہیں تو آپ میرے سوشل میڈیا ہینڈلز پر مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو میرے پاس 8 سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر میرے چینل کا نام ہے ارم ٹی وی، اور اگر آپ یوٹیوب پر لکھیں ارم ٹی وی 5544 تو آپ کو میرا یہ چینل نظر آئے گا۔ یہاں پر آپ میرا سارا ویلیویبل کنٹینٹ دیکھ سکتے ہیں، میرا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تمام کنٹینٹ اس چینل پر موجود ہے۔ میری فیس بک پروفائل کا نام ہے ارم مشتاق ایجوکیشن والی۔ آپ یہاں پر مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ یہ میرا فیس بک پروفائل ہے۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی دیکھ سکتے ہیں ارم مشتاق ایجوکیشن والی کے نام سے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ لنکڈ ان پر مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، وہاں پر بھی میری پروفائل کا نام ہے ارم مشتاق ایجوکیشن والی۔ تو میرے تمام سوشل میڈیا ہینڈل آپ کے سامنے ہیں، تو ہم جو ہے کنیکٹ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے ویلیوبل انسائٹس کے لیے، ریویوز کے لیے اور میننگ فل کنورسیشن کے لیے۔ اگر آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ان تمام سوشل میڈیا کے کمنٹ سیکشن میں اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں، کوئی سجیشن دے سکتے ہیں، کوئی اچھی بات شیئر کر سکتے ہیں، کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو آپ جو ہے اس میں دے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام سوشل میڈیا اور میرے ہینڈلز جو ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ میرے فیس بک پروفائل کو فالو کر سکتے ہیں، آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ سکیں جن کو اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہو گیا میرا تعارف، اور اب میں یہ بڑھتی ہوں اس ویڈیو کی طرف جس کے بارے میں نے ریویو بنانا ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے از اے آئی پروگریس ٹیک، کیا مصنوعی ذہانت کی جو ترقی ہے وہ رک گئی ہے؟ تو یہ ایک ریویو ہے اور یہ اسپیکر ہیں۔ یہ ویڈیو کا ٹائٹل وہ تھم نیل ہے، آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ریویو کو ہے کچھ حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ تو پہلا جو حصہ ہے وہ میرا انٹروڈکشن کا ہے، تعارف کا، پھر میں اس کی سمری خلاصہ آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد جو ہے اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، کچھ نقطے ہیں جو بہت ضروری ہیں، وہ میں آپ سے بتاؤں گی۔ پھر میرا اپنا خیال کیا ہے، مائی پرسنل ریفلیکشن کیا ہے وہ بتاؤں گی۔ اس کے بعد اس ویڈیو کی جو اچھے اسٹرینگتھس ہیں یا اس کی کمزوریاں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے اس کے بارے میں اپنا کنکلوژن یا اپنی رائے دوں گی۔ تو ویڈیو کے ریویو پر بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ چاہوں گی کہ آپ جو اس ویڈیو کی اسپیکر ہیں، بات کرنے والی محترمہ ہیں جینیفر گولبیک، ان سے اپنا تعارف کروائیے۔ ان کی تصویر ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی بایوگرافی اور ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جینیفر گولبیک کے بارے میں۔ تو ان کا جو پروفیشن ہے، یہ کمپیوٹر کی سائنٹسٹ ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور یہ لکھاری بھی ہیں اور ٹیڈ کے اسپیکر بھی ہیں۔ ابھی وہ پروفیسر ہیں کالج آف انفارمیشن اسٹڈیز میں، یونیورسٹی آف میری لینڈ میں۔ اس کے علاوہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے، ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن میں ہے، سوشل میڈیا انالیسس میں ہے اور ایتھکس ان اے آئی میں ہے۔ ان کی جو ریسرچ ہے وہ فوکس کرتی ہے ٹرسٹ کے اوپر، پرائیویسی کے اوپر اور ایتھیکل ایشوز آف اے آئی اینڈ سوشل میڈیا ڈیٹا کے اوپر۔ اور ان کی ایجوکیشن میں ایم اے اور بی اے ہے کمپیوٹر سائنس میں یونیورسٹی آف شکاگو سے، پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے کمپیوٹر سائنس میں یونیورسٹی آف میری لینڈ سے۔ جو کتابیں یہ لکھ چکی ہیں اس میں اینالائزنگ دا سوشل ویب آتا ہے، انٹروڈکشن ٹو سوشل میڈیا انویسٹیگیشن آتا ہے، اور دوسری کتابیں ہیں۔ اور ابھی تک یہ جو اپنے کام میں جانی جاتی ہیں وہ ان کا کام ہے کہ ورک نون فور ورک آن ٹرسٹ ان اے آئی، کہ ہم ان کا جو کام ہے کہ ہم اے آئی پہ کیوں ٹرسٹ کریں وہ انہوں نے کیا ہے۔ الگورتھم کے ایتھکس جو ہیں وہ انہوں نے بنائے ہیں، اور یہ ٹیڈ پر آتی ہیں، یہ کی نوٹ اسپیکر ہیں گلوبلی۔ اور اب ان کی پبلک انگیجمنٹ جو ہے یہ ریگولرلی کمنٹ کرتی ہیں اے آئی پر اور ٹیک ایتھکس پر سوشل میڈیا پر آ کر۔ یہ اپنی پوڈ کاسٹ بھی کرتی ہیں اور یہ اپنی کانفرنس بھی اسٹیبلش کرتی ہیں۔ ادر فیکٹس ان کے جو ہیں یہ ہیں کہ یہ ایڈوکیٹ ہیں ایتھیکل ٹیکنالوجی کی، اور یہ پیشنیٹ ہے اینیمل ریسکیو کی، اسپیشلی ڈاگس کی، کتوں کی۔ تو یہ ان کی بایوگرافی ہے۔
और ये जो इवेंट टेक प्लेस हुआ जहाँ पर इन्होंने ये अपनी जो है टेड में अपना एक स्पीच दी, ये बताया, तो ये वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था 8 जून 2024 को। और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, प्रोफेशनल एकेडमिक स्टूडेंट्स और वैसे भी जिन लोगों को टेक के बारे में सुनने और जानने का शौक है, वो सब यहाँ पर मौजूद थे इनकी स्पीच सुनने के लिए। तो मैं फिर आपको बताती चलूँ कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी सजेशन देना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स जो कि आपके सामने ओपन है फेसबुक पर और लिंक्डइन पर, जो कि अभी ये लाइव जा रहा है, तो आप यहाँ पर कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और कुछ कीमती बातें या कुछ सजेशन या कोई बेहतरी या कुछ और जो आप देखना चाहते हो कि मिस आप इसमें ये भी इंक्लूड करें, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने काम को और बेहतर कर सकूँ आपकी सजेशन से, या इस जिस तरह आप लोग इसको देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैं फिर बताऊँ कि आपका ये जो कमेंट करना है या आपका मुझे सपोर्ट करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ये मेरे लिए एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ रखती है। इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलती है और आप लोग मुझे हेल्प करते हैं कि मैं और ऐसा कंटेंट जो है वो क्रिएट करूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने काम की तरफ। समरी की बात करते हैं कि ये जो टेड टॉक थी उसमें हमारे स्पीकर ने बात क्या की। ओपनिंग पॉइंट पे जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि जो एआई है, मस्नूई ज़हानत है, ये कुछ सालों में बहुत एडवांस हो गई है अपने सिस्टम के साथ भी, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी चैट जीपीटी की और इमेज जनरेटर की। लेकिन उन्होंने ये बोला कि लोग इसकी जो क्रिएटिविटी है और इसकी तेज़ी, इससे बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। लेकिन जो कोर कंसर्न है, इससे जो हाइप क्रिएट की जा रही है, वो उस पे हमें नज़र रखनी चाहिए कि जो ये मस्नूई ज़हानत है, ये अभी भी स्ट्रगल कर रही है बहुत सारे कामों में। एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा बायस भी है ये, और ये बहुत ज़्यादा रिलाय करती है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। और जो इसके फ्लॉज़ हैं, वो हमें शो करते हैं कि प्रोग्रेस जो है वो स्मूथ और एडवांस नहीं जा रही, जैसे कि बहुत से लोग इसको शो करें, अज्यूम करें। उसके बाद उन्होंने कहा एजीआई वर्सेस नैरो एआई। एजीआई और नैरो एआई में क्या फ़र्क है? सबसे पहले एआई, जिसको वो कहती है टास्क स्पेसिफिक सिस्टम, ये वर्क करती है अगर ये कंट्रोल टास्क इसको हम दें, जैसे प्लेइंग चेस हो गया या टेक्स्ट क्रिएट करना हो गया। और आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, जिसको वो एजीआई कहती है, वो जो है सोचती भी है और वो रीज़न भी करती है ह्यूमन की तरह। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है अभी भी कंफ्यूज है, या वो उस तरह करती है जैसे कि उसको बताया जाता है। और ये बहुत दूर है इस बात को अचीव करने के लिए कि ये कभी हम इंसानों की तरह ये भी बिहेव कर सके, या इंसानों की तरह ये भी सोच सके। ये सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के बारे में सोच सकती है और ये उन गाइडिंग पैटर्न्स पर ही चलती है। इसका अपना अभी कोई दिमाग नहीं है, इसकी अपनी अभी कोई सोच नहीं है। ये हमारे ही सवालों से रिजल्ट्स निकाल के हमें जवाब देती है। फिर उन्होंने कहा कि इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस, हमने जो तरक्की है ना उसके बहुत सारे से धुंधले से इमेज अपनी तरफ से बना लिए हुए हैं। जो हमारा मीडिया है वो जो नरेटिव पेश कर रहा है या मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहा है एआई की एबिलिटीज की, कि एआई इस काबिल है या उस काबिल है, सारे काम इंसान जैसे एआई कर लेगी, इंसानों की जगह मशीनें ले लेंगी। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये जो इंटेलिजेंस है ये कहाँ तक है, इसमें कितनी रियलिटी है, और अभी ये सिस्टम कितना कमज़ोर है या इनकंसिस्टेंट है या इतना इरेगुलर है, इसमें कहाँ तक जो है सही काम है। उसके बाद उसने ये बोला कि एथिकल एंड सोशल रिस्क हमें देखने चाहिए। बायस इन ट्रेनिंग डाटा लीड्स टू अनफेयर आउटकम। जब हम डाटा को ऐसी बातें देते हैं जो कि बायस होती हैं, सच नहीं होती, तो उसके बाद ये रिजल्ट निकलता है कि जो उसके रिजल्ट आते हैं वो भी सच से सही नहीं होते। तो जो मसनूई ज़हानत है वो जो है बहुत सारी बातों में गलत भी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली जो है हमें आउटपुट देती है जो कि गलत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए और लॉ के लिए। तो हमें जो है इन सारी चीज़ों पे अपनी आंखें खोल के रखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये मिस इन्फॉर्म हमें करती रहती है और बहुत सारी चीज़ें ये भूल भी जाती है और गलत भी जवाब देती है। इकोनॉमिक इंसेंटिव जो है वो बहुत सारी कंपनी जो है वो इस बात को लोग पुश कर रहे हैं कि वो जो है पैसे बहुत ज़्यादा एआई पे लगाएं, बहुत जल्दी लगाएं, और ये देखे बगैर कि सेफ्टी क्या है और फेयरनेस क्या है। तो इसके बारे में भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इतनी जल्दी एआई पर रिलायबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं काम करने वाली, वो भी बहुत सारे कामों में इंसानों से निस्बतन बहुत पीछे है। उसके बाद है ह्यूमन एज।
तो क्रिएटिविटी की बात करें, एम्पैथी की बात करें या एथिकल रीजनिंग की बात करें, तो वो ह्यूमन के लिए अभी भी यूनिक है, वो ह्यूमन के पास ही है, और ये इंसान की स्ट्रेंथ है, और एआई जो है कभी भी इससे मैच नहीं कर सकती। एआई के पास ये चीज़ें नहीं हैं। क्लोजिंग मैसेज में आखिर में बस मैं ये बात कहना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ रशिंग टूवर्ड्स स्पेक्युलेटिव ड्रीम्स ऑफ एजीआई, बहुत जल्दी जल्दी उस ख्वाब की तरफ भागने की तरफ कि जी हमें मसनूई ज़हानत मिल गई है, हमें सोसाइटी में फोकस करना है कि हम जो अभी हमारे मसाइल हैं उनको कैसे हल करें। एआई को हम किस तरह इतना ट्रस्टवर्दी और एथिकल और यूजफुल बनाएं कि जो हमारी इस दुनिया के मसाइल हैं वो हल हो सकें। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी, गोलबैक जो है उसने एक हकीकत दिखाई है, उसने बिल्कुल सच्ची बात की है कि एआई जो है वो इतनी ज़्यादा ट्रूली प्रोग्रेस नहीं कर रही, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों में स्टक थी, स्टक है और स्टक रहेगी, क्योंकि जो ह्यूमन की यूनिकनेस है, उसकी अपनी क्वालिटीज़ है, वो एआई नहीं ले सकती। मशीन हमेशा मशीन ही रहेगी, मशीन उन बातों के ही जवाब देगी जो जवाब हमने उसके अंदर इनपुट किए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारा डाटा उसके पास है, वो उसको मिला के और उससे नॉलेज इकट्ठी करके वो हमें वापस देगी, लेकिन वो हमें दे वही रही है जो हम उसके अंदर इनपुट करें, वो अपना कुछ क्रिएट नहीं कर रही। तो इसकी जो प्रोग्रेस है उसको हमें मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए, और हमें जो है ऐसे फ्लैशी टूल्स की तरफ नहीं भागना चाहिए जो कि हमारी प्रोग्रेस और हमारे काम को ख़राब करें, और हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि असल में जो डीपर वैल्यू है वो ह्यूमन बींग्स की है, और हमारे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है एआई जो है उनको लिमिटेड हद तक जो है वो सॉल्व करती है या उस पर रियल इम्पैक्ट डालती है। असल में जो रियल इम्पैक्ट डालना है वो हमने इंसानों ने ही डालना है। तो मेरी पर्सनल रिफ्लेक्शन जो है वो ये है कि एज अ टीचर मैं इस बात को बिल्कुल सही तरह समझती हूँ कि जो टेड स्पीकर उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने हाईलाइट किया है कि मसनूई ज़हानत जो है वो फैसिनेटिंग प्रोग्रेस दिखा रही है, और ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है बायसनेस की वजह से, इसमें बहुत ज़्यादा बायसनेस है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ख़राब है और हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। और बिगेस्ट लेसन मेरे लिए इसमें ये है कि टेक्नोलॉजी अकेली जो है वो काफ़ी नहीं होती, ये हमें गाइड करती है, लेकिन हमने भी इसको गाइड करना है एथिक्स में, ह्यूमन वैल्यूज़ में और जिम्मेदारी में। एजुकेशन की अगर बात करें तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि वो एआई टूल से बहुत अमेज है, जैसे चैट जीपीटी से, और वो जो है ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके रिस्क क्या है। हम इस पे डिपेंड करके ब्लाइंडली अंधाधुन हम इस पे डिपेंड नहीं कर सकते। और ये जो स्पीकर की टेड टॉक है, ये मुझे इस बात को रिमाइंड करवाती है कि मेरा एज अ टीचर रोल क्या है। मैंने सिर्फ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, लेकिन मैंने जो है हेल्प भी करनी है अपने सीखने वालों की, वो सीखें क्रिटिकली, क्वेश्चन के आंसर ढूंढें, अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करें और एआई की जिम्मेदारी को बेहतर तौर पर समझ सकें। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जो टेड स्पीकर है उसने ह्यूमन क्वालिटीज़ को बड़ा ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, जिसमें क्रिएटिविटी, एम्पैथी एंड मोरल जजमेंट आती है, जो कि कभी भी मशीन जो है वो हासिल नहीं कर सकती और ह्यूमन को वो रिप्लेस नहीं कर सकती। इसने मुझे होप दी है कि एजुकेशन जो है उसको हमेशा से ही एक असल उस्ताद की ज़रूरत है और मेंटोर्स की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी अगली नस्ल को गाइड कर सकें कि जितना मर्जी एआई एडवांस हो सके हो जाएगी, लेकिन वो रहेगी मशीन, उसको हमेशा इंसान की ज़रूरत रहेगी, और इंसान जो है वो मशीन को इस्तेमाल करेगा, ना कि मशीन कभी इस काबिल होगी कि वो इंसान को इस्तेमाल कर सके। तो इस टेड टॉक की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये टेड टॉक बहुत अच्छी थी, बहुत होपफुल टेड टॉक थी, और इसने ये बताया कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को हमने कैसे एड्रेस करना है, कैसे हम प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को देख सकते हैं और एआई को हम किस तरह अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक हाइप क्रिएट करें, एक ट्रेंड क्रिएट करें। और इस टेड टॉक की वीकनेस ये थी कि ये और ज़्यादा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन एजुकेटर्स को दे और पॉलिसी मेकर्स को दे, ताकि जो एआई है हम उसको अच्छी तरह एड्रेस कर सकें, उसके उससे आने वाले चैलेंजेस को हम समझ सकें। ओवरऑल ये टेड टॉक थी, बहुत इंस्पायरिंग थी, और ये जो है बहुत ज़्यादा एथिकल डिस्कशन भी लेकर आई एआई और ह्यूमन बीइंग के बारे में, क्लासरूम में, स्टूडेंट में और सब लर्नर्स के लिए, कि सिर्फ ओनली एआई कुछ नहीं है, बल्कि हमने खुद से क्वेश्चन अपने क्रिएट करने और बैलेंस क्रिएट करने हैं एआई का यूज़ और ह्यूमन इंटेलिजेंस में, इन दोनों को साथ लेकर चलना है। लेकिन हमने इस पर डिपेंड नहीं हो जाना मुकम्मल, हमने अपने आप को इससे स्ट्रेंथन बनाना है, ना कि इसको यूज़ करके हम खुद को वीक कर लें। तो आज का जो मेरा एनालिसिस था वो उर्दू में ये था जो मैंने आपसे पेश किया। अब मैं दोबारा से आपको ये बताऊंगी कि मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब आपके सामने ओपन है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपनी कोई व्यूज़ देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, और अगर आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तो ये आपका वैल्यूएबल एक इंकरेजमेंट होगी फॉर मी, ताकि जो है मैं और ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं, आप लोग मुझे हेल्प करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और
बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी ये वीडियो देखने का। अब मैं दोबारा किसी और नए टॉपिक पर किसी और नई वीडियो के साथ ज़रूर अपने वर्चुअल स्टूडियो द रिफ्लेक्शन रूम से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।